آج ویو 360 میں امریکہ میں تھینکس گیونگ کا تہوار، نیو یارک کے مسلمانوں نے تقسیم کیے حلال ٹرکی۔ چلیے کراچی کے ایک ایسے علاقے میں جہاں سبھی ہیں فٹ بال کے دیوانے۔ میں خود پرسنلی یہ جرمنی کی ٹیم کو سپورٹ کرتی ہوں اور میرے گھر میں میرے ہسبینڈ برازیل کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک گہما گہمی رہتی ہے، ایک بحث مباحثہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ اور سمندر کی لہروں سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی بری فوج کے سربراہ کے عہدے کی تقرری کے لیے سمری صدر عارف علوی کو بھیج دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر عارف علوی اس سمری پر اپنی پارٹی کے قائد عمران خان سے مشاورت کرنے لاہور ان کی رہائش گاہ پر گئے۔ اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری نے میڈیا کو بتایا کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت 29 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ فوج نے وزارت دفاع کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے 6 سینئر ترین افسران کے ناموں پر مشتمل سمری ارسال کی تھی، جس نے وہ 6 نام ایوان وزیر اعظم کو ارسال کیے تھے، جس میں سے وزیر اعظم نے اپنی پیکس صدر عارف علوی کو بھیج دی۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان سے۔ علی فرقان، یہ بتائیے کہ یہ نامزدگیاں جن پر بہت دنوں سے بہت بحث ہو رہی تھی، تبصرے ہو رہے تھے، تجزیے ہو رہے تھے، لوگ بتا رہے تھے کہ یہ جنرل بن جائیں گے یا یہ صاحب جنرل بن جائیں گے، ان نامزدگیوں کے بعد اب کیا ملک کا سیاسی ٹیمپریچر کچھ بہتر ہونے کی توقعات کی جا رہی ہیں؟ آپ کی جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقینی طور پہ گزشتہ ایک ماہ سے پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے اور وہاں پہ مجموعی طور پہ وہ ہیجان کی سی کیفیت میں مبتلا تھا، اور اس کی تمام تر جو صورتحال ہے وہ اسی تقرری کے گرد گھوم رہی تھی، سیاسی صورتحال ہماری ملک۔ آج یہ نامزدگی جو کی ہے اس سے بعد یقینی طور پہ حکومت کی طرف سے جو یہ فیصلہ لیا گیا، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی یہ صورتحال اس وقت تک جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو رہی جب تک کہ اس کی تقرری جو ہے جو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اس کی مکمل طور پہ اس کے آئینی تقاضے پورے نہیں کر لیے جاتے۔ 29 تاریخ کو جو کہ فوج کی ایک روایت رہی ہے، وہاں چینج آف کمانڈ کی سرمنی جو ہے وہ ہونی ہے۔ اس سرمنی کا جو ہے وہ بہت زیادہ انتظار ہے۔ اس سرمنی سے پہلے یہ تمام جو معاملات ہیں جو کہ آئینی تقاضے ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے، اور اگر آئینی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تو یقینی طور پہ یہ حجان کی کیفیت یہ برقرار رہے گی، بلکہ بعض ماہرین اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حجانی کیفیت جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت میں بھی بدل سکتی ہے۔ علی فرقان، ایک ٹیکنیکل ایشو ہے ان نامزدگیوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ 27 نومبر کو نامزد چیف آف آرمی سٹاف کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی، جبکہ جنرل باجوہ جو کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہوں گے۔ تو یہ بیچ میں جو 2 دن آ رہے ہیں، کیا اس سے کوئی آئینی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ حکومت نے کہا ہے کہ سروس اس دن سے شروع ہو جائے گی، لیکن کیا کوئی آئینی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ قانونی اہم معاملہ ہے، اور اسی کو لے کے آج وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور ہمیں ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ ایسی ترامیم جو ہے وہ بھی زیر غور آئی ہیں کہ وہ اس چیز کو جو کہ یہ جو صورت ہے اس اگر پیدا ہوتی ہے، اگر صدر کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے اسمبلی پہ، تو اس چیز کو جو ہے وہ کور کیا جا سکے۔ عمران خان نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، مشاورت بہت شکریہ علی فرقان، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ امریکہ میں آج تھینکس گیونگ ڈے منایا جا رہا ہے، ٹرکی کھانے کا دن۔
اس اہم تہوار کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے. لاکھوں امریکی اس دن کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ منانے کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں. اسی لیے اس ملک میں اس دن کو ہالیڈے سیزن یا تہواروں کے موسم کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے. روایتی طور پر لوگ اس دن خاندان کے افراد اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر روایتی پکوانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جن میں سر فہرست ٹرکی ہے. تاہم بعض لوگوں کے لیے یہ جشن متنازع ہے، کیونکہ کولمبس ڈے کی طرح بہت سے لوگ اس چھٹی کو نو آبادیات کے ذریعے آبائی کمیونٹیز یا انڈین امریکنز کے خلاف فتح کے جشن کے طور پر دیکھتے ہیں. اس دن کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے نیو یارک میں منعقد ہونے والی میسیز کی تھینکس گیونگ ڈے پریڈ، جس کا انعقاد پہلی بار سن 1924 میں کیا گیا تھا. ہر تہوار کی طرح تھینکس گیونگ پر بھی مختلف ثقافتوں اور روایات کا رنگ نظر آتا ہے. نیو یارک کے علاقے برائٹن بیچ میں پاکستانی کمیونٹی اپنے طریقے سے اس تہوار کو مناتی ہے. وہ بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کے اس روز سینکڑوں ٹرکی ان نادار لوگوں میں تقسیم کرتی ہے جو خود سے اسے خریدنے کی سکت نہیں رکھتے. تفصیلات دیکھتے ہیں صباحت زکریا کی رپورٹ میں. شاید زیادہ تر لوگ جو امریکہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ان کے ذہن میں تھینکس گیونگ کا نام سن کر کچھ اس قسم کی تصویر ابھرتی ہے. ایک فیملی، ایک کھانے کی میز، اس پر ٹرکی اور بہت سی سائیڈ ڈشز اور ان سب چیزوں کے لیے شکرانہ یعنی تھینکس گیونگ. لیکن اس امیگرینٹ سے بنے ملک میں صرف تبدیلی ہی ایک کانسٹنٹ ہے. تھینکس گیونگ کو ہی لے لیجیے. اس کی روایات میں بھی سال بسال اور مختلف جگہوں پر تبدیلی ہوتی رہتی ہے. نیو یارک کا علاقہ برائٹن بیچ اس کی ایک مثال ہے. پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد برائٹن بیچ میں رہتی ہے، جو یہاں کی دکانوں کے سائن بورڈز دیکھ کر ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہاں ہر سال اپنا کے نام سے ایک آرگنائزیشن کم آمدنی والے لوگوں میں سینکڑوں ٹرکی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تاکہ ہر طبقے کے لوگ اس خوشی میں شامل ہو سکیں. مگر ان ٹرکیز کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب حلال ہوتے ہیں تاکہ مسلمان بھی اس امریکن ٹریڈیشن کا حصہ بن سکیں. لوگوں کی ایک لمبی قطار یہاں پر ٹرکیز کے انتظار میں ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پاکستانی یہاں تک کہ مسلمان بھی نہیں ہیں. آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں حال ہی میں بہت سے یوکرینینز بھی آئے ہیں جو عام طور پر کھانے کی فری ڈسٹریبیوشن جیسے سہولیات سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. اس کام میں شریک ہونے کے لیے آج اس علاقے کی اسمبلی وومن مٹلڈے فرنٹس بھی یہاں آئی ہوئی ہیں. اور نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ، جس کا عام امیج تو لوگوں میں تھوڑا سخت ہی ہے، یہاں اپنے سافٹ امیج کو منواتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جو کہ نان انگلش اسپیکرز ہوتے ہیں، ریسنٹ امیگرینٹس ہوتے ہیں یا ریفیوجیز ہوتے ہیں، تو اس کمیونٹی میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہم ہیلپ کرتے ہیں. پبلک بینیفٹس، پبلک سروسز جو گورنمنٹ کی سطح پہ ملتی ہیں، سٹی، اسٹیٹ اور فیڈرل لیول پہ، ان تمام بینیفٹس کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. حلال ٹرکی ہم نے الحمدللہ اس دفعہ سیکیور کی ہے. اسلامک ریلیف ہماری آرگنائزیشن ہے جس نے ہمیں ڈونیٹ کی ہیں، اور ہم 600 ٹرکیز حلال آج یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ حلال چکن بھی ہے اور مختلف اور پینٹری کے آئٹمز ہیں جو کہ ہم کمیونٹی کے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ پری ڈومیننٹلی ہم پاکستانی اور مسلم ہیں جو کہ ہمارے بورڈ ممبرز ہیں اور ہمارا اسٹاف بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو کمیونٹی آ رہی ہے ہمارے پاس لینے کے لیے وہ بڑی ڈائیورس ہے. یہاں پہ افریقن امریکن بھی ہیں، رشین بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، اسپینش بھی ہیں، تو بڑی عرب امریکن بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں. تو آپ لائنس میں دیکھیں تو یہ تمام ڈائیورس کمیونٹی ہے جو کہ ایک ہم ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی ادارہ ہم ان تمام لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ ہالیڈے سیزن اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس قسم کے انیشیٹیوز مختلف کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں. صباحت زکریا، وائس آف امریکہ، نیو یارک. ڈائیورسٹی اور رنگ و نسل کی تفریق نہ ہونا یہی امریکہ کی خوبصورتی ہے. اب چلتے ہیں قطر. عالمی فٹ بال کپ کے مقابلے جہاں جاری ہیں، لیکن جائیں گے پاکستان. قطر نہیں، میچ اسٹیڈیم میں دیکھا جائے یا گھر پر دیکھا جائے، اس کھیل سے محبت کرنے والوں کو جوش اور ولولہ کسی طور کم نہیں. لیکن ایک ایسا ملک جہاں ہر سو کرکٹ ہی نظر آتی ہو، اگر وہاں صرف فٹ بال کی ہی باتیں ہوں اور اسی کھیل کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہو تو حیرت ضرور ہونی چاہیے. سدرا ڈار کراچی کے ایک ایسے علاقے میں پہنچیں جہاں ہر گلی ہر گھر صرف فٹ بال کا دیوانہ ہے. یہی نہیں، یہاں رہنے والوں نے اپنی محبت کا اظہار اپنے محلے کو سجا کر بھی کیا ہے. ورلڈ کپ خوبصورت رنگوں اور کھلاڑیوں کی تصویروں سے سجی یہ گلیاں کراچی کے علاقے صدیق کوٹ کی ہیں.
इस इलाके में बलोच आबादी अक्सरियत में है और फुटबॉल इनकी जिंदगियों का हिस्सा है। कतर में जारी वर्ल्ड कप से कबल ही इन गलियों मोहल्लों को रंगों से भरने का काम इसी गोट के नौजवान साजिद अली ने किया। साजिद यूं तो एक गैर मारूफ पेंटर हैं, लेकिन इनका ये आर्ट अब हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। वो चूँकि खुद भी फुटबॉल के दीवाने हैं, इसीलिए इनके आर्ट में ये मोहब्बत और लगन साफ देखी जा सकती है। ये तो शौक़ तो मुझे बचपन से था, पहली दूसरी क्लास में था तब से ही मुझे ये शौक़ था। लेकिन यहाँ पर गोट वालों ने मुझे 2006 से बुलाना शुरू किया, तो तब मैं एक लोगो बनाता था छोटा मोटा। तो इसी तरह इन लोगों ने मेरे को यानी और अप्रिशिएट किया कि यार आप सही बनाते हो, ये हो। तो मैं ज़्यादा बनाने लगा। 2010 में मैंने ज़्यादा बनाए, फिर अब 2014, फिर अब यानी 2022 इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो ये यानी इन लोगों को मेरा काम असल में बहुत पसंद आ गया था। यहाँ कोई इटली का सपोर्टर है तो कोई जर्मनी का दीवाना, किसी को पुर्तगाल का खेल पसंद है तो कोई ब्राज़ील को नाकाबिले शिकस्त मानता है। इस खेल से मोहब्बत करने वाले कुछ नौजवानों ने तो वर्ल्ड कप के लिए बलोची जुबान में गाना भी बना डाला है। वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप तो बिद मना बोला मरवा दया गोला मदाया अड़े निमार डोला मैसी ये शुटा विचार करना अच्छे गोला बेगरवती गोला वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप। यहाँ पे सियासत वाले नहीं है, सारे फुटबॉल वाले हैं। यहाँ पे क्रिकेट वाले भी नहीं है, सारे फुटबॉल वाले हैं। इस इलाके में फुटबॉल का खेल एक कल्चर समझा जाता है। यहाँ बच्चा अपनी पैदाइश के साथ ही अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ी से मोहब्बत शुरू कर देता है। एक ही मोहल्ले बल्कि घर में मुख्तलिफ टीमों को सपोर्ट करने पर जहां हल्की फुल्की बहस और तकरार रहती है, वहीं पूरे वर्ल्ड कप के दौरान यहां पर त्यौहार की तरह रौनक दिखाई देती है। अपनी मदद आप के तहत इस मोहल्ले की हर गली को सजाने में जहां नौजवानों ने काम किया, वहीं ख़वातीन भी इस खेल के सहर में मुब्तला नजर आती हैं। मैं खुद पर्सनली ये जर्मनी की टीम को सपोर्ट करती हूँ और मेरे घर में मेरे हस्बैंड ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से एक गहमा गहमी रहती है, एक बहस मुबाहिसा हमेशा से चलता आ रहा है। हमारा मोहल्ला सिद्दीक विलेज मलीर हर ओकेज़न को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है और पुरजोश तरीके से हमारी बच्चियाँ लड़के मिल के इन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो के आपस में। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप मलीर सिद्दीक गोट के लिए एक ईद की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अपनी जिंदा दिली और फुटबॉल से मोहब्बत के सबब सिद्दीक गोट जहां मिनी कतर के मनाजर पेश कर रहा है, वहीं साजिद की पेंटिंग्स की धूम अब पूरे शहर में मच चुकी है। सबसे पहले तो रोनाल्डो, मेसी, माराडोना, नेमार, इन लोगों की फरमाइशें आती है कि ये चार का बनाना तो लाजमी है। बाकी का तो खैर बने या ना बने, लेकिन इन चारों का तो बनाना लाजमी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ करते हुए, देखते हुए लोगों का। मुझे फील हो रहा है कि वाकई में मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। इस खेल से मोहब्बत करने वालों की दुनिया भर में कमी नहीं, लेकिन कराची में ये सजावट और तैयारी करने वाले इन नौजवानों की मेहनत से पता चलता है कि खेल कोई भी हो, वो हर किस्म की ज़ात पात रंगो नस्ल की पाबंदियों से आज़ाद होकर दिलों को जोड़ता है। तभी इस मोहल्ले के रहने वाले मीलों दूर बसने वाले खिलाड़ियों से वालेहाना मोहब्बत और इनकी जीत के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। समंदर, जो सदियों से सफ़र, तिजारत और तफरीह का ज़रिया रहा है, अब दुनिया को दरपेश एक बड़े मसले के हल में मददगार साबित हो सकता है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल में कायम एक कंपनी समंदर की लहरों की हरकत से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। कैसे? देखिए माहौलियाती तब्दीली पर हमारी खुसूसी सीरीज़ के तीसरे और आखिरी हिस्से में। जब दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई की बात हो, चाहे वो बायोगैस से हो, शमसी तवानाई से हो या हवा की तवानाई से हो, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के मुतजाद हैं। कोयले, पेट्रोलियम या कुदरती गैस जैसे मादनी ईंधन जलाना सब मौसमियाती तब्दीली में हिस्सा डालते हैं।
इसके अलावा कोयले की कानकनी से ज़मीन पर माहौलियाती असरात मुरतब होते हैं, जैसे कि तेल के लिए समंदर में ड्रिलिंग से होता है। लातादाद ऑफशोर पेट्रोलियम लीक्स समंदरी हयात के लिए खतरात पैदा कर रही हैं। लिहाजा साइंसदान और इंजीनियर्स अमेरिका के तवानाई के महकमे के ताउन से मादनी ईंधन के इस्तेमाल को कम करने और बिलाखिर इसे रिसाइक्लेबल तवानाई से रिप्लेस करने के लिए काम कर रही हैं। जेनिफर ग्राम होम अमरीकी महकमा तवानाई की वजीर हैं। 3 में से एक अमरीकी ज़ाती तौर पर इंतहाई दर्जे के मौसमी वाक़यात से मुतासिर हुआ, जिसमें कुछ कमज़ोर कम्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। सदर बाइडन वाकई समझते हैं कि ये चैलेंज कितना अहम है और इसी वजह से वो 2030 तक अमेरिका को माहौलियाती आलूदगी के अखराज को निस्फ हद तक कम करने के रास्ते पर गामजन करने के लिए पुरज़्म हैं। ये उनके अवामी तौर पर बयान करदा अहदाफ हैं। 2035 तक 100% साफ बिजली तक पहुँचना और 2050 तक आलूदगी का अखराज सिफर करना। 2022 में एक नई टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने में मदद के लिए अमरीकी महकमा तवानाई ने $25 मिलियन की फ़ंडिंग का ऐलान किया, ताकि ख़ास तौर पर समंदर की लहरों से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजीज़ पर तहकीक की जाए, तख्लीक की जाए और इसका अमली मुज़ाहरा किया जाए। महकमा तवानाई से ग्रांट हासिल करने वाली कंपनियों में से एक सियाटल वाशिंगटन में ऑसिला पावर है। बाल्किनार इस रिसर्च कंपनी के सदर और CEO हैं, जो समंदर में लहरों की नकलो हरकत से साफ बिजली पैदा करने के लिए काम कर रही है। हमने शमसी तवानाई के बारे में सुना है, हमने हवा की तवानाई के बारे में सुना है। क्या समंदरी लहरों की तवानाई एक नया जरिया है? ये रिसाइकलेबल तवानाई के सबसे बड़े ज़राए में से एक है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ये इस लिहाज से शमसी और हवा से बहुत मुशाबिहत रखता है कि ये मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल और हर वक्त दस्तयाब है। लेकिन ये तवानाई इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये आम तौर पर दिन के मुख्तलिफ औकात में दस्तयाब होती है। शमसी और हवा के मुकाबले साल के मुख्तलिफ औकात में कम अज कम शमसी आम तौर पर दस्तयाब होती है। समंदर की लहरों को शमसी तवानाई की एक इजाफी शक्ल के तौर पर देखें। हर चीज सूरज से आती है। सूरज हवाओं को चलाता है जो समंदरों की सतह पर आती है और समंदर में लहरें पैदा करती है। इसलिए हम लहरों की तवानाई को शमसी तवानाई के हिस्से के तौर पर देखते हैं। लहर की तवानाई को हासिल करना और उसे बिजली में तब्दील करना ट्राइटन सी एनर्जी सिस्टम है। ये फिलहाल बहरुल काहिल की लहरों से साफ रिसाइक्लेबल तवानाई पैदा करने की अपनी सलाहियत को जाहिर करने के लिए अमरीकी रियासत हवाई में समंदर के किनारे नस्ब किया जा रहा है। ये ऐसे काम करता है। लचकदार लाइनों से जुड़ी एक रिंग की शक्ल वाली प्लेट ट्राइटन सी से समंदर में नीचे उतारी जाती है। पानी की लहरों की मुख्तलिफ हरकत, उछलना, हिलना, घूमना और उतार चढ़ाव रिंग को मुख्तलिफ समतों में हरकत देता है। टिम मंडन इंजीनियरिंग के नायब सदर हैं। वो वजाहत करते हैं कि उनकी सियाटल लेबॉर्ट्री में एक मॉडल के साथ कैसे काम करता है। ये एक 50 गुना छोटा मॉडल है जिसका हाल ही में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में तजुर्बा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 ड्राइव ट्रेनें हैं। ये मॉडल बिल्कुल वैसे हैं जैसे बड़े पैमाने के मॉडल्स होंगे और हमारे पास यहाँ थोड़ा सा लोड सेल और कुछ पैमाइशी आलात मौजूद हैं ताकि हकीकी ड्राइव ट्रेन के असरात को नकल किया जा सके। तो ये 3 ड्राइव ट्रेन्स हैं जो यहाँ नजर आ रही हैं। जी हाँ, तो आपके पास मिसाल के तौर पर ये वो लाइन है जो नीचे के रिंग की तरफ जाएगी और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खींचेगी और ये घूमेगी और ये हरकत करेगी। हाँ, जब ये उछलती हैं तो ये आगे जाती हैं तो कभी पीछे आती हैं। जी हाँ, हमारे पास यहाँ एक छोटा पैमाइशी आला है जो इस पोजीशन की पैमाइश करता है। हम सिर्फ फोर्सेस को नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये किसी न किसी तरह आपस में जुड़े होंगे और फिर किसी किस्म की पावर लाइन से जुड़ जाएंगे। जी हाँ, ये इससे बहुत मिलता जुलता है कि हकीकत में हमारे पास एक ही केबल होगी जो बाहर निकलेगी, जो साहिल तक जाएगी, जो बिजली की बरामद करेगी। और यकीनन इस मॉडल में जो हम बरामद कर रहे हैं ये वही तरीक़ेकार है। ये हमारे सिस्टम का सब स्केल वर्जन है जिसे टैंक में टेस्ट किया गया था। इन आलात की जांच करना इंतहाई अहम है क्योंकि हम फ्रंट एंड पर बहुत सी नंबर मॉडलिंग करते हैं। नंबर्स हमें बताते हैं कि डिवाइस किस तरह परफॉर्म कर सकती है, लेकिन टैंक में असल जांच किए बगैर आप इन मॉडल्स पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए सब स्केल टेस्टिंग ये समझने में हमारी मदद करती है कि ये निज़ाम कितना अच्छा है और हमें अपने मॉडल्स पर भी एतमाद फराहम करती है। लिहाजा हम तवानाई की इस असल मकदार के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं जो सिस्टम करेगा। ट्राइटन सी के बारे में मुझे बताएं, ये कितनी बिजली पैदा कर सकता है, यानी ये कितने घरों को बिजली दे सकता है? ट्राइटन सी समंदरी लहर की तवानाई का 100 किलोवाट का सिस्टम है। इसकी सलाहियत का अंसर तकरीबन 20% या इससे ज्यादा है।
जिसका मतलब है कि औसतन तकरीबन 20 किलोवाट पैदा कर सकता है, जो कि तकरीबन 10 घरों को बिजली फराहम करेगा। ट्राइटन 1 मेगावाट है और इसकी सलाहियत भी मेगावाट जैसी है और ये शायद 200 घरों को बिजली फराहम कर सकता है। समुद्री लहरों की तवानाई रिसाइक्लेबल तवानाई के अमूमी पोर्टफोलियो में कैसे फिट होती है? समुद्री लहरों की तवानाई मौजूदा रिसाइकलेबल तवानाई के पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन इजाफा हो सकती है। शमसी और हवा बेहतरीन वसाइल हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ शमसी और हवा को दस्तयाब वसाइल के तौर पर देखते हैं तो तखमीनों से पता चलता है कि 2050 तक हमें बिजली की तलब को बरकरार रखने के लिए दर हकीकत मजीद फॉसिल फ्यूल्स जलाने की ज़रूरत होगी। लिहाजा हमारे पास इजाफी ज़राए शामिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हमारा मकसद दरअसल फॉसिल फ्यूल यानी मादनी ईंधन की मिकदार को कम करना है तो ऐसा करने के लिए समुद्री लहरों की तवानाई शमसी और हवा के साथ एक बेहतरीन इजाफा हो सकती है। लिहाजा अगर आप इस मिक्स में समुद्री लहरों की तवानाई शामिल करते हैं तो आप दर हकीकत फॉसिल फ्यूल्स की मिकदार को कम कर सकते हैं और शमसी और हवा की तवानाई के लिए दरकार स्टोरेज की ज़रूरत को कम कर सकते हैं। और ये ज़्यादा मुमकिन है? क्या ये ठीक है? जी हाँ, दूसरे रिसाइकलेबल ज़राए के मुकाबले में समुद्री लहरों की तवानाई की पेशगोई 4-5 दिन पहले की जा सकती है। आप शमसी तवानाई के बारे में कह सकते हैं कि ये धूप वाला दिन होगा, लेकिन अब्र आलूद दिन में आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि सूरज कब चमकेगा, जबकि यहाँ आप किसी खास घंटे पर 4 दिन पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लहरों के जरिए कितनी तवानाई फराहम की जा सकती है। अब जबकि हवाई में ट्राइटन सी का तजर्बा किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में लहरों की रफ्तार बेहतर है, बॉल्की नायर दुनिया के दीगर हिस्सों की तरफ देख रहे हैं जहां ऑसिला पावर की सिस्टम को कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कम कीमत रिसाइक्लेबल तवानाई बनाई जा सके। मैं यहाँ हिंदुस्तान के जनूब मगरबी साहिल पर खड़ा हूँ। ये रियासत केरला है और जो हम देख रहे हैं वो विजंजम की बंदरगाह है। ये हिंदुस्तान के साहिल पर लहरी तवानाई के लिए बेहतरीन इलाकों में से एक है, जिसकी वजह से हम मकामी एजेंसियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साहिल पर अपना पहला यूटिलिटी स्केल सिस्टम लगाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ लहरों की शिद्दत इतनी मजबूत नहीं है जितनी के अमेरिका के मगरबी साहिल या मगरबी यूरोप में, लेकिन ये सब कुछ इस बात का तयन नहीं करता कि समुद्री लहरों की तवानाई के लिए पुरकशिश मकाम क्या है। बॉल्की का कहना है कि दुनिया भर में लहरों की तवानाई की टेक्नोलॉजी के लिए मौजूद मकामात की तलाश में रिसाइक्लेबल तवानाई के अवामिल की मकामी मांग बहुत ज्यादा है। ये कहाँ नस्ब होंगे? कौन इस किस्म की तवानाई से मुस्तफीद होंगे? समुद्री लहरों की तवानाई के लिए बेहतरीन मकाम बरे आज़मों के मगरबी साहिल और ख़त्े उस्तवा से मजीद दूर मकामात हैं। बज़ाहिर अमरीका का मगरबी साहिल लहरी तवानाई के लिए एक बेहतरीन मकाम है और जैसा कि यूरोप का मगरबी साहिल है, लेकिन कुछ पोशीदा मकामात भी हैं जिन्हें हम दरियाफ्त करना शुरू कर रहे हैं। पता ये चलता है कि ये मकामी मुआशियात है, मकामी पैदावारी लागत और मकामी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई की ज़रूरत है जो इसमें दिलचस्पी पैदा करती है। लिहाजा हिंदुस्तान एक पुरकशिश मार्केट है जब आप इस तरह के अवामिल पर गौर करें, लेकिन मजमूई तौर पर जब आप देखते हैं कि दुनिया भर में लोग कहाँ रहते हैं तो दुनिया भर की तकरीबन निस्फ आबादी किसी साहिली पट्टी पर रहती है। इस वजह से ये एक अच्छा वसीला है जो उन जगहों पर दस्तयाब है जहाँ मांग ज्यादा है। हम भारत से शुरू करने का इरादा रखते हैं, फिर यूरोप जाएंगे और फिर बिल आखिर वापस अमरीका। हर कोई क्लीन एनर्जी की तरक्की से फायदा उठा सकता है। मेरे ख्याल में लहरी तवानाई से खास तौर पर साहिली कम्युनिटीज तवानाई के साथ साथ और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और एनर्जी के इस नए जरिए से नई मुलाजमतें पैदा की जा सकती हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।